तो मीन्स अगर कोई खून आ रहा है दांतों में तो इट मे नॉट बी कि दांत में ही कोई प्रॉब्लम, इट नहीं। कैन बी साइंस ऑफ एनी बट एनी 100% मैम, 100%। तो फिर डेंटिस्ट्री में ज़्यादा एस्थेटिक्स का है, एक्सपेंसिव भी है, फिर लोग दर्द होने से पहले जाते नहीं हैं, फियर फैक्टर भी है, फियर फैक्टर भी है। Some dental health experts say overall oral health could get much worse. मैम देखो ऐसा है ना, मिथ्स हैं बहुत सारे कि लेडीज़ में ही अब डिलीवरी के बाद घर में ब्रश नहीं करने देते। मैम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। Today we are busting dental myths, Instagram hacks and fears with Dr. Deepa. If you have ever ignored your dental health, this episode is for you. So hi doctor, thank you for giving us time for this podcast. Hello Garima, this is my pleasure. So ma'am, today, we before talking about dentistry, we'll talk how did you choose this profession and how did you become a dentist? चूज़ तो मैंने नहीं किया था एक्चुअल हमारे टाइम में या अभी भी रैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। मुझे सिर्फ एमबीबीएस के बारे में मालूम था, बट जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वो घर से बहुत दूर था एंड आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन और 50 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते थे। सो माय फादर सेड कि बेटा पास के कॉलेज में तेरा हो ही जाएगा, तू इतनी हार्ड वर्किंग है एंड आई गॉट एडमिशन इन बीडीएस इन रोहतक डेंटल कॉलेज। तो फिर देन आई वाज़ इनटू इट। उसके एडमिशन के बाद मुझे पता चला एक्चुअली बीडीएस होता क्या है। बट वंस आई गॉट इनटू द कॉलेज देन आई वाज़ टोटली इनटू इट कि सब कुछ सीखना है, अच्छे से सीखना है। So this college from Rohtak is a famous college, I guess, right? हाँ, वेरी फेमस एक्चुअली इट वाज़ द ओनली कॉलेज In the for dentistry and one another college in Yamunanagar, that's all. There were 2 colleges only when you were doing videos. when I was doing VDS. So it was very, very difficult to get admission in that college, the government dental college, yeah. I went through your profile and heard that you were the second most popular graduate in terms of numbers and all. I went through your profile somehow. देखो, अभी देखो तो आपको लग रहा है उस वक़्त यही सब मैटर करता था, फर्स्ट आना है, टॉप करना है, बट लेटर ऑन इन लाइफ ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, दो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। Where are you से basically from? या आई एम फ्रॉम नरवाना, यू मस्ट हैव हर्ड, इट्स अ वेरी पॉपुलर टाउन। I've heard it, but not a lot. इंडिया के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, बड़े अच्छे डॉक्टर्स दे बिलॉन्ग टू नरवाना। And a यू great कैन से dentist इट्स also belongs या from Nirvana. नहीं, थैंक यू फॉर दैट, बट एक्चुअल में वहाँ के लोग बहुत स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने वाले हैं और Oh, हार्ड really? वर्किंग है, या रियल। So, okay. So how, like, your parents are from Nirvana? या माय पेरेंट्स आर फ्रॉम नरवाना, एक्चुअली आई एम मैरिड इन नरवाना। Oh, both same city. माय इन-लॉज आर आल्सो इन नरवाना। And how come Chandigarh then? हाउ कम चंडीगढ़? ये बड़ी लंबी जर्नी है और थोड़ी सैड जर्नी भी है। I was the best practitioner in Nirvana, All right. but for my son's education and my husband was working here in Chandigarh, Sector 16 hospital. So I plan to shift to Chandigarh, but it's a long story. We'll talk about it later on. So you have a clinic right here, and why did you choose, opening a clinic in Nirvana? My first clinic is Nirvana only. It's since last 26 years. So I you have another clinic by Dr. yeah, Nirvana. yeah, it's by the name of Deepa Dental Clinic. Actual में तो मेरी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है वही क्लिनिक है। It's still It gives me, yeah, it's still operational and it gives me a lot of confidence that I am giving the, not me, now the doctors there, they are giving the best services in such a small town. so okay. So how do you manage your visits being here also, and have to visit Nirvana also? See, I don't go regularly now. Initially, I used to visit every weekly. Then I started doing fortnightly. The doctor working there is very good. All right. So now I go once in a month, like that. So it is a very emotional moment, right? Yeah, As you have first clinic in Nirvana. yeah. My heart stays there only till now. The patients are also very good there. I won't say patient is patient, but still they respect you a lot. बड़े शहरों में आजकल थोड़ा-सा चेंज हो गया है, एवरीबॉडी इज़ आफ्टर मनी। तो शायद हमारी जनरेशन वो है ना जो थोड़ी पुरानी जनरेशन है, तो कई बार चीज़ें आपको फ़ील भी होती। I surveyed a lot before this podcast also. So uh, more of the ladies are into dental these days. No, Is there anything special about it?
नहीं आजकल नहीं, पहले भी होती थी डेंटिस्ट्री में। देखो पहले ये होता था कि छोटा कम वक़्त लगता है, एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। बीडीएस इटसेल्फ इज़ स्पेशलिस्ट ब्रांच बेसिकली। एमबीबीएस के बाद आपको 3 साल स्पेशलिटी करना पड़ता है। एक तो टाइम ड्यूरेशन कम है। दूसरा थोड़ा ये भी कहते थे टू बी और फनियर साइड की लड़कियों को करा दो बीडीएस, शादियाँ अच्छी हो जाएँगी। Okay, this myth is still. हाँ, हाँ, था बट अब नहीं है। अब बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हो गए हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हो गए हैं। अब वो नहीं है कि या इंजीनियर बनेगा बच्चा या डॉक्टर बनेगा। देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। आप देख लो, आप खुद पॉडकास्ट कर रहे हो, है ना? कितना अच्छा कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। So, ma'am, in today's era, in the era of Instagram, social media, Google. So, what the major misunderstanding is there about dentistry? मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगी। बेसिकली थोड़ा मुझे ये लगता है कि लोग लुक्स पे ज़्यादा हैं, दो इट इज़ अ गुड थिंग, अपने लुक्स पे ध्यान रखना चाहिए। बट हाइजीन और पेन फ्री होना, डिज़ीज़ फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। मेबी आई एम रॉन्ग, बट बच्चे आजकल ज़्यादा दे वांट व्हाइट टीथ, ब्राइट टीथ। टू सम एक्सटेंट इट इज़ गुड, बट व्हाइटनिंग के चक्कर में आपके दाँतों में दर्द हो जाए, सेंसिटिविटी हो जाए, वो भी अच्छा नहीं है, है ना? Do you think that it is because of this social media Yeah, definitely this is because of social media only. portrayed so well, they would themselves on social media? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे टाइम में जो पढ़ाया जाता था बीडीएस में, तो यही पढ़ाया जाता था कि दो हमने व्हाइटनिंग भी पढ़ा है और सब कुछ पढ़ा है, एस्थेटिक्स भी पढ़ा है, बट फोकस वाज़ मोर ऑन कि पेशेंट का दर्द कैसे खत्म करना है। Hmm. अभी धीरे-धीरे जो क्लिनिक्स आ रहे हैं, डेंटिस्ट्री में आ रहा है, इट इज़ मोर अबाउट एस्थेटिक्स, मोर अबाउट द लुक्स, एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया ओनली, जिसमें कोई हार्म नहीं है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट आपके दाँत ना खराब हो उस चक्कर में। But ये भी है कि when you have a dental pain, and people don't rush to doctors, they take it very lightly. Dentist and the dental pain has been taken so lightly these days. कोई हार्ट डिसीज है, बंदा बाहर, राइट? उसी टाइम टेस्ट करवा लेगा, ये जाएगा डॉक्टर्स के पास जाएगा, विजिट मेनी डॉक्टर। बट व्हाई डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकन सो लाइट? देखो भई दिल तो एक होता है, दाँत 32 है। है ना? दाँत 32 है, एक निकलवाएँगे तो दूसरे से खा लेंगे। फिर देखो बड़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता है डेंटिस्ट्री महँगी भी है, इंडिया में इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में कफ नॉट इंश्योर्ड एट ऑल। व्हिच इज अ रॉन्ग आई ना वी वोंट से इट रॉन्ग, फिर लोग थोड़ा मिसयूज़ भी नहीं, तो फिर एक करते हैं दांत ना। निकल गया तो एक वाला इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, दो हाँ, दांत एग्ज़ैक्टली, तो 32 इंश्योरेंस चाहिए। एग्ज़ैक्टली 32 इंश्योरेंस चाहिए। तो फिर डेंटिस्ट्री में ज़्यादा एस्थेटिक्स का है, एक्सपेंसिव भी है, फिर लोग दर्द होने से पहले जाते नहीं हैं, फ़ियर फैक्टर भी है, बट पहले तो वो लॉन्ग रख लेंगे, दिन अगर उस दिन अपन पड़ा तो फिर भागेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। People also ignore, dental issues and dental health. मैम देखो ऐसा है ना, मिथ्स हैं बहुत सारे कि लेडीज़ में ही अब डिलीवरी के बाद घर में ब्रश नहीं करने देते, 1.5 महीना कि तुम्हारे दाँत गिर जाएँगे। I don't think so. हाँ, नहीं, 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 दिस इज़ ट्रू। ठीक है, दीज़ डेज़ थोड़ा चेंज हुआ है, बट अभी भी आप इंटीरियर्स में जाके देखो, विलेजेस में जाके देखो, हम तो कहाँ हैं, हम तो चंडीगढ़ में बैठे हैं ना। तो आप देखो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को दूर करना बड़ा मुश्किल है। लोग नहीं जाते डेंटिस्ट के पास, जबकि अब तो बहुत चेंज हुआ है, अब तो लोग विज़िट, बट जैसे इंडिया के बाहर है कि इट इज़ मैंडेटरी टू विज़िट एवरी 6 मंथ्स टू द यार, डॉक्टर्स इन हमें पढ़ाया भी गया स्टार्ट बिल्कुल। हम छोटे होते हैं पढ़ाया भी है कि वो क्या कब क्या विजिट करना है, 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट को विजिट किए, अपने दांत दिखाएं। हुँ। बट नहीं, इतना नहीं है, अवेयर हुआ है बट अभी उतना अवेयरनेस नहीं आया है। इन पर्टिकुलर टेस्ट में, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो कैन वी टॉक अबाउट कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर घर में डेंटल प्रॉब्लम होती है, बट पीपल यूजुअली इग्नोर इट, विजिट नहीं करते हैं, एंड व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो आपके पास विजिट्स होती हैं तो उसमें मेजर इश्यूज किस चीज़ के आ रहे हैं आजकल डेंटिस्ट्री में बात करें तो? देखो घर पे तो लोग इग्नोर करते हैं छोटे ग्रुप में कि ब्लीडिंग हो गई ब्रश करते हुए, ठीक हो जाएगी, कोई मेजर इश्यू नहीं है। 2 लोग अवेयर हैं, आते हैं, बुज़ुर्ग लोगों में कि दाँत मिसिंग है, 1 दाँत नहीं है, दूसरे से खा लिया, कुछ नहीं होता। बट उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम उनको कि क्या हो सकते हैं। और जो लोग आजकल विज़िट करते हैं ज़्यादातर एस्थेटिक पर्पज़ से भी करते हैं, हर तरह से करते हैं लोग, डेंटिस्ट्री के बारे में अवेयर तो हैं ही, बट
उतना नहीं है। सो ब्लीडिंग गम्स है जो वो इग्नोर्ड है, हर घर में इग्नोर्ड, दे डोंट आई वुड से हर घर में इग्नोर्ड है, हम डेंटिस्ट के घर में थोड़ी इग्नोर्ड। बट हाँ, मतलब लोग इसको लाइटली लेते हैं, दाँत मुँह से ब्लड आ गया तो कोई बात नहीं, कहीं और से आ गया तो मैं 1 मिनट में हॉस्पिटल में। ये तो ये तो है। तो प्रॉब्लम वैसी ही है, मतलब डेंटिस्ट बुजुर्ग बुजुर्ग कह देंगे या वो बुजुर्ग कह देते हैं क्या जाने डेंटिस्ट के पास, चल फिटकड़ी के कुल्ले कर ले। दो हमारे टूथपेस्ट में भी एलम है, करें। बट हाँ, उसका कोई रीज़न भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपके बॉडी में कोई इश्यू हो, वो माउथ में सबसे पहले शो हो रहा है, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। अब जैसे कुछ लोग हैं उनको ब्लीडिंग हो रही है, मेबी वो ब्लीडिंग गम्स की वजह से हो, ये भी तो हो सकता है कि आपको अंडरलाइन कोई और डिज़ीज़ हो। एंड दैट इज आल्सो That डिटेक्टेड थ्रू या एवरी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपका बॉडी साइंस तो देता ही है, आइदर माउथ में देता है, स्किन पे देता है, कैसे भी देता है। ओह, बट हम जब तक वो उस ऑर्गन में साइंस नहीं आ जाते इग्नोर करते रहते हैं। सो मीन्स अगर कोई खून आ रहा है दांतों में तो इट मे नॉट बी कि दांत में ही कोई प्रॉब्लम, इट नहीं। कैन बी साइंस ऑफ एनी 100% मैम, 100% इट कैन बी आपकी, अभी वो मेडिकल लैंग्वेज तो हम क्या यूज़ बात। कर रहे हैं वो बात नहीं कर सकते, बट आपकी प्लेटलेट्स बहुत लो चली गई हैं तब भी ब्लीडिंग गम्स होंगे। ओह, आपको और बहुत सारी हीमोफीलिया है, बड़े सारे डिजीज़ेज़ हैं जिसमें सबसे पहले ब्लीडिंग गम्स इश्यू आता है। ई-कॉमर्स साइट्स पे या शॉपिंग साइट्स पे बहुत चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, हैक्स हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जिससे व्हाइटनिंग कर लो, ये कर लो तो वो हो जाएगा। मतलब डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डेंटिस्ट तो लास्ट एस्केलेशन है। तो बस ठीक है, हम क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, जो इंस्टाग्राम, गूगल ये देख के आएगा उसकी कंसल्टेशन ₹1000 होगी, नहीं ज़्यादा होगी, स्टे अवे फ्रॉम द क्लिनिक। Is it okay that people are selling these kind of hacks and the products which can be used on your teeth? So, what are your views on this? मैम इट्स नॉट अबाउट ओके है या नहीं है, कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ठीक होती है। आप घर बैठे गूगल से डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना। डॉक्टर के पास तो आप विज़िट करोगे और कोई भी डॉक्टर आपको मिसगाइड नहीं करता, 99% ऑफ द डॉक्टर्स, हर डॉक्टर आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइड करेगा जितनी उसकी नॉलेज है। तो आप घर बैठे व्हाइटनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, एनामल ही खराब कर लिया आपने। आपने इस पे रील भी बनाई थी, मैंने इंस्टाग्राम डिगिंग जी, किया था आपको जी, थोड़ा जी, सा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है, अब आप डॉक्टरी भी घर पे ही कर लो बैठ के, आपका अच्छी बात आपके नहीं है। आपके मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा है, बहुत सारी आपने डिप्रेशन के बारे में बोला था। हाँ, मैम ये आपने तो आजकल का हॉट टॉपिक है। हाँ, डिप्रेशन इज़ अ हॉट टॉपिक दीज़ डेज़, जेंज़ीज़, हाँ, भाई अगर छोटा बच्चा भी, मैंने अपनी सोसाइटी में नोटिस किया कि एक बच्चा जा रहा था, तो मैंने कहा, "यार, तू ऐसे क्यों बैठा है?" तो सर मेरे को डिप्रेशन है। ओह माय गॉड! आउट लाउड एंड लिटरली दिट एक्चुअली मैम वर्ड्स का यूज़ भी बड़ा, मैं कहूँगी, मिसयूज़ होने लग गया है। हर कोई एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इतना लाइटली, हमारे वक़्त में कहाँ ये वर्ड्स थे, हमें मालूम भी नहीं होता था कि एंग्ज़ायटी वर्ड क्या है, डिप्रेशन क्या है। मम्मी-पापा कहते थे परेशान हो रखी है, उठ जा, चाय पी ले ठीक हो जाएगी। अभी तो सीधा फिर पेरेंट्स भी सिंगल 2 किड्स हो गए हैं, उनके बारे में ऑब्सेस्ड हो गए हैं, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, चलो साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, एंग्ज़ायटी की वजह से डेंटल इश्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं लोगों को, स्लीप एपनिया हो रहा है, दाँत ग्राइंड हो रहे हैं, सेंसिटिविटी आ रही है, इट्स अ वास्ट टॉपिक। सो यू नीड टू एड्रेस द बेस प्रॉब्लम, नॉट द सिम्पटम्स। सो कॉफ़ी से याद आया कि आजकल बच्चे कॉफ़ी बहुत पीते हैं, चाय भी हो गई है, चलो चाय को उन्होंने कॉफ़ी के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है। वेपिंग ऑल्सो। वेपिंग आल्सो, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन इंस्टाग्राम पीपल, ये बच्चे जो वेप यूज़ कर रहे हैं एंड वो उन्होंने एक हैक ढूँढ ढूँढ लिया है कि अगर पेरेंट्स स्मोकिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो वेप यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ डैमेजिंग आई गेस पीपल मेंटल हेल्थ आल्सो कि इतना भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कूल दिखना है, पीयर प्रेशर है, वो पी रहा है तो मैं भी पी रही हूँ, भई हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। बट हर चीज़ की, वही जो मैंने पहले भी बोला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप एक लिमिट अमाउंट में लोगे तो ठीक है, उसके बाद तो खराब ही है। अब कॉफ़ी आप बार-बार पी रहे हो, स्टेनिंग तो हो गई, कैफ़ीन है, एंग्ज़ायटी की हम बात कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कॉफ़ी से एंग्ज़ायटी खत्म होती है, एक्चुअल में तो बढ़ती है ना कैफ़ीन से। और वो भी उनके पास सॉल्यूशन आ गया है हाँ, कि चलो कॉफ़ी पी, बाइट करा रही है। बिल्कुल। फिर उसके बाद चलो मतलब कुछ भी ले रहे हैं तो व्हाइटनिंग ऐसा प्रोसेस बन गया कि 2-3 बार तो 1 साल में बच्चा करवा ही रहा है। मैम यू वोंट बिलीव कि व्हाइटनिंग करवाने आ रहे हैं, मुँह खोलते हैं, आगे से व्हाइट कर दो, पीछे कितनी कैविटीज़ हैं मालूम नहीं है जब तक दर्द ना हो जाए।
मैं बोलूँगी कि सबसे पहले हाइजीन ज़रूरी है, उसके बाद डिज़ीज़ फ्री होना ज़रूरी है, फिर सुंदर लगना भी ठीक है। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ तो नहीं आप करोगे ना। एंड आई हैव सीन पेरेंट्स बीइंग कूल अबाउट इट, यू नो, उनका बच्चा अगर वेप यूज कर रहा है एंड दे थिंक कि हेल्दी है, चलो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, बट दिस इज लाइक, यू नो, टेकिंग देम टुवर्ड्स दैट स्मोकिंग थिंग ओनली। मैम पेरेंट्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, हर फैमिली के अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, पता नहीं बच्चे बताते भी हैं या नहीं, पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं। हमारे वाले जो एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं वो तो दोनों के बीच में हैं, मॉडर्न भी हैं और पुराने भी हैं। अब उनका क्या करोगे जो 70s 80s में है, उनको तो ये चीज़ें उन्होंने देखी नहीं लाइफ में, कंप्यूटर्स वगैरह। तो ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बच्चे पेरेंट्स को वो भी करते हैं, रात को कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स थोड़ी बैठ के उनकी वो करेंगे, चौकीदारी थोड़ी करेंगे पेरेंट्स, है ना? नॉट पॉसिबल। अपनी अपनी लाइफ जिएँगे या बच्चों की, ठीक है, माँ-बाप पेरेंट बच्चों को देखकर ही जीते हैं, बट अगर बच्चे ही आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो आप क्या करोगे फिर? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब तो वो जो रिटेनर्स से भी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, वो इनविलिजाइन इनविजिलाइज़। इनविजिलाइन हाँ वो जी, आ गए हैं। हाँ जी। सो हाउ, मतलब ये ड्रास्ट चेंज, टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आ गया अब तो डेंटिस्ट। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा भी हुआ है मैम, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं हुआ है। 80% अगर हम उसको ठीक से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ है। इनविजिलाइन इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके जो टीथ हैं, टेढ़े-मेढ़े हैं, पहले आप वो स्टील ब्रैकेट्स लगाते थे, वो लग नहीं है कहीं। थ्रू दैट स्टील ब्रैकेट। हाँ, तो कंफर्टेबल नहीं था। अगर आपको इनविजिलाइन से ट्रीटमेंट हो सकता है, हाँ, अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर रहता है। इतनी एक्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूर। इनविजिलाइन डॉट एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इट इज़ अ रिमूवेबल थिंग एंड आपका 100% करेक्शन है। इनविजिलाइन की बात करें मैम, एक्सपेंसिव भी बहुत है। एक्सपेंसिव तो है मैम बट 50,000 प्लस में है आई गेस, है ना? डेफिनिटली मोर देन तो अगर हम 50%। खर्चे की बात करें तो ब्रेसिस पे ज़्यादा खर्चा होता है या इस वक़्त इनविजिलाइन में ज़्यादा खर्चा? मैम देखो ओवरऑल कैलकुलेट करो तो ब्रेसिस में आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है ना? इनविजिलाइन में यूजुअली आपको इतना विज़िट नहीं करना पड़ता अनलेस अंटिल आपका फिट खराब ना हो जाए। तो 2 एक्सपेंसिव तो है बट ओवरऑल कैलकुलेशन करूँ तो ठीक है। इट्स अ गुड इट्स अ गुड प्रोडक्ट अगर आपकी उसको फिट करता है। मीन्स आप डेफिनिटली, रेकमेंड करोगे कि इफ समवन डज़न्ट वांट टू गो फॉर ब्रेसिस, दे कैन गो फॉर। डेफिनिटली, डेफिनिटली। एंड ये एडजस्टेबल भी होते हैं। जी हाँ। नहीं वो एक ही नहीं होता मैम, बहुत सारे सेट्स होते हैं, वो आपको चेंज करने आप होते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि मैं डेंटिस्ट का बनता हूँ और फिर इनविजिलाइन लगानी शुरू कर दूँ? डेंटिस्ट बनना इतना आसान नहीं है मैम, अच्छा डेंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल है। वुमन बहुत मुश्किल सर, है। होम डू यू गिव दिस क्रेडिट टू, लाइक आपने अगर इतना कुछ अचीव किया है, यू हैव अ बिग नेम। इफ आई टॉक अबाउट पन्हाला, ज़ीरकपुर, Pir Mashallah, and you know other areas too nearby your radius. So you have a name. हाँ So जी। whom do you give this credit? क्रेडिट देखो सबसे पहले तो मेरे फादर का नेचुरली। Every girl would give. या नो सी हमारे फैमिलीज में और हमारे सिटी में लड़कियों को बाहर भेजना का ट्रेंड नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट वन। पापा ने सारे सब चीज़ों से ऑड से लड़के मुझे बाहर भेजा। माय फादर इज नो मोर नाउ, आई मिस हिम, रियली मिस हिम। पापा के बाद the whole credit goes to Dr. Kapish, my husband. He has been a doctor. Yeah, he's an orthopedic surgeon and he's like, he totally supported me, totally, 200%. पैसा नहीं है, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं लाइफ, छोटा बच्चा गोद में है, आई एम स्टडीइंग फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। Okay. He totally Did your support. post graduation after marriage? No, I didn't do my post graduation. I prepared for it when my son was just 4 5 months old. I couldn't go through the exams. But my husband supported me every time. Then I did my practice in a very small town, नरवाना, वहीं की बेटी, वहीं की बहू, पेशेंट्स को चार्ज करना, आधे पापा को जानते थे, वो पापा को नहीं जानते थे, वो मेरे फादर इन लॉ या हस्बैंड को जानते थे और आपको पता है फिर सुंदर डेंटिस्ट अच्छा। छोटे शहर में, है ना? तो बट माय हस्बैंड सपोर्टेड मी टोटली। Okay, he's also practicing. नो ही इज़ विद द गवर्नमेंट सेक्टर। या सो मैम, इम्प्लांट की बात करें तो आजकल मैंने नाम सुना भी नहीं था। पीपल टॉक लेस अबाउट इम्प्लांट, बट आजकल हर, अगर मैं डेंटिस्ट के इंस्टाग्राम खोलूँ या पेजेस खोलूँ या उनके मार्केटिंग
पोस्टर्स कहीं पढ़ूँ तो इम्प्लांट के बारे में बहुत मेंशन किया हुआ है। सो कैन यू टेल आवर ऑडियंस एंड अस कि ये इम्प्लांट अभी एकदम से इमर्जिंग हुआ है। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? इमर्जिंग तो अभी से नहीं हुआ है। हाँ, हमारे वक़्त में जब हमने बीडीएस किया तो उस वक़्त मतलब हमने प्रैक्टिकली नहीं किया था। बुक्स में एक चैप्टर आता था, वो पढ़ लिया, बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो लिख लिया। इम्प्लांट के बारे में। इम्प्लांट के बारे में बेसिकली इम्प्लांट होता क्या है कि आपका अगर मिसिंग टूथ है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, मिसिंग टूथ को लगाने के लिए आप आस-पास के दाँतों को खराब नहीं करते, वहीं पे एक स्क्रू डाल देते हो। अगर आप बिल्कुल एक छोटी लैंग्वेज में कहो। और मैंने भी पिछले कुछ सालों में उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं और उसको बहुत डीपली स्टडी किया है। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर पेशेंट की बॉडी रिक्वायरमेंट्स को फिट करता है, पेशेंट की बॉडी में कोई और इश्यू नहीं है, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग। और इससे पहले क्या मतलब प्रोसीजर होता था कि अगर इम्प्लांट नहीं था, जब लोग कम करवाते थे या बहुत ही अच्छे वाले डेंटिस्ट, अगर मैं बोलूँ वो हाई वाले डेंटिस्ट, वो इम्प्लांट्स करते थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मामा। है ना? हाँ जी। तो फिर उसका उसका क्या सोल्यूशन था कि बिना जब इम्प्लांट्स नहीं होते थे तो? हाँ, देखो जब मैंने प्रैक्टिस किया आई थिंक 2000 में अपने टाउन में, तो उस वक़्त यही होता था यूजुअली दाँत खराब हुआ तो ज़्यादा रूट कैनाल करने की बजाय निकाल दो। रूट फिर कैनाल का भी कुछ उतना भी टेंट देखिए। खाली दाँत निकल गया, उसके बाद कुछ पेशेंट तो लगवाते ही नहीं थे 80%। आपने देखा होगा बड़े-बुजुर्ग बिना दाँतों हाँ, बिना दाम तो या फिर वो दाँत जो छींक रहे हैं तो साथ में बाहर आ रहा है। आई देखा इट वंस कि आई वेंट टू माय नानी हाउस एंड आई वेंट, मैं ब्रश करने जा रही थी तो वहाँ पर ना कटोरी में दांत पड़े थे एंड आई गॉट स्केयर्ड। मैं भागती आई मम्मी के पास, मम्मी किसी के दांत गिर गए, किसी के दांत गिर गए। एंड इट्स अ रियल स्टोरी कि ऐसे हुआ है। तो माय मामू केम एंड ही सेड कि "तू अपने मत कर, आज ब्रश ये वाले कर दे।" तो दैट वाज दैट Yeah, exactly. That was the solution कि removable. That is called a denture thing and it is removable. Implant जो होता है it is a fixed thing. आप उसको निकाल नहीं सकते। तो उस वक़्त में शुरू में हम वही देते थे। पेशेंट का इम्प्रेशन लिया, आजकल तो हमने स्कैनर्स लगा लिए हैं, इम्प्रेशन की जगह हम बहुत टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है, बहुत वास्ट। चेयर साइड टूथ बन जाता है, 4-5 दिन नहीं लगते। आपके पास मशीन्स आ गई हैं। हाँ, मैंने है आपने ना? सही 24 आवर्स में आप कास्ट करके लगा देते हो, क्राउन पेशेंट को साथ के साथ भेज देते हो। ये डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक्स में ही बन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यू आल्सो डू सेम प्रैक्टिस? Yeah, we do the scanning instead of taking impressions and अगर पेशेंट को फिट होता है तो 72 आवर्स में आप टीथ भी देते हो बट उसके लिए बड़ी सारी प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो पेशेंट का फिट होना बहुत ज़रूरी है। वी डू द सेम प्रैक्टिस। टेक्नोलॉजी इज रूलिंग आई गेस। एग्जैक्टली। हमारे वक्त में हम उस टाइम जब प्रैक्टिस शुरू किया था रिमूवेबल दे दिया पेशेंट को या तो फिर दूसरा मेथड होता था कि आसपास के दांत को ग्राइंड करके एक ब्रिज लगा दिया। दैट इज ऑल्सो अ वेरी good thing if you are not fit for implant, but if you are fit for implant you should go for implant, not the bridge or the removable thing. सो क्या अभी हम देख सकते हैं कि अगर कोई डेंटल डेंटल क्लिनिक है तो अगर वो इतना वास्ट टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करता, क्या वो ऑपरेशनल नहीं है? पीपल नहीं ऐसा नहीं, गो देयर और नॉट? नहीं ऐसा नहीं है। मेरी नरवाना वाली क्लिनिक का डेली ओपीडी आई यूज्ड टू सी 70 पेशेंट्स अ डे। कोई यू यूज्ड टू सी Exactly. In 2005 I used to have an OPD of 40 or 50. इन कोई मानेगा भी नहीं, कहेंगे ऐसे ही बोल रही है। अपने नंबर बनाने के लिए मेरा ये मेंशन किया था ना हाँ। वो सुंदर डेंटिस्ट। और नहीं, सुंदरता की वजह से इतने पेशेंट नहीं आते भैया। ठीक है। नहीं तो अभी सर्वाइवल है ऐसे क्लिनिक्स का? बिल्कुल है मैम, माय क्लिनिक इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्लिनिक राइट नाउ आल्सो एंड वहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं है। वी डोंट हैव अ स्कैनर आउट देयर। दो वी आर डूइंग इम्प्लांट्स देयर बट वी डोंट विदाउट हैव स्कैनर यू डूइंग? नहीं, स्कैनर इम्प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। स्कैनर इज़ अ डिवाइस जिससे आप इम्प्रेशन मुँह में वो जो ट्रे डालते हैं ना, वो उसका काम खत्म उसका करेगा। काम खत्म करेगा। अरे वो जो अंदर मिक्सचर जाता है एग्ज़ैक्टली। वो अब वो वो ज़रूर खत्म। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। या दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो मींस सर्वाइवल है टू दी एक्स। सर्वाइवल नहीं, बहुत अच्छा आपको बेसिकली तो काम आना चाहिए ना। अभी आप सपोज़ एक डॉक्टर है, रोबोटिक सर्जरीज़ भी आ गई। इतनी एडवांसमेंट हुई, वो ईज़ी के लिए हुई है बट मुझे चलाना तो आना चाहिए ना। तो अभी आपके नरवाना वाली क्लिनिक में बिल्कुल, डॉक्टर अच्छा है तो सब कुछ होता है एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द डॉक्टर नॉट द मशीनरी। machines who are going to, you know,
सो टेक्नोलॉजी से हमारा ईज़ी हुआ है, अभी हम रूट कैनाल हाथ से करते थे, हम मोटराइज़्ड करते हैं, तो मेरा वो थोड़ा ईज़ी एग्ज़ैक्ट And implant also through the machine. या So people, जैसे पहले जैसे कुछ ऑपरेट करना है किसी ओल्ड पर्सन का, तो वो बीपी चेक करना है। डस इट इफेक्ट्स कि इम्प्लांट में भी वो चेक करना पड़ता है 100% यू नीड टू गो थ्रू द ब्लड टेस्ट ऑल्सो। बिफोर इम्प्लांट? एग्ज़ैक्टली, डायबिटिक को थोड़ी करोगे आप, सर्टेन पैरामीटर्स तो रहेंगे ना। So Dr. Deepa, over last 3 decades, 1 billion disease, these are the numbers कि dental oral diseases जो है वो increase हो चुके हैं to 1 billion last 3 years, and it's a 50% increase in the oral disease and dental issues. So what do you have to say about these numbers? And this is a global numbers I'm talking about. देखो ऐसे तो कहा जाए इतनी एडवांसमेंट हुई है, इतनी वैरायटी आ गई है, लोग अवेयर हुए हैं, कम होना चाहिए। बट आप कह रहे हो बढ़ रहे हैं, तो sources is आई थिंक डाइट मेजर फैक्टर। इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि रफेज कोई खा ही नहीं रहा, सॉफ्ट डाइट, स्टिकी डाइट, बच्चे can we elaborate this? I guess this is the has to be spoken out the diet issues and roughage, what this is linked, how it is linked to this issue. Can you explain in elaboration? देखो सबसे बड़ा फैक्टर आपके बॉडी में क्या होता है, डाइट होता है, व्हाट यू ईट शोज। बड़ी पुरानी फ्रेज है कि अगर आपको कोई स्टमक का भी इशू हो रहा है, लेग्स का इशू हो रहा है, दैट मीन्स आपके डाइट में इशू है। तो डेंटल में भी यही है। आजकल देखो आप कितना कुछ सॉफ्ट डाइट आ गया। रफेज गन्ना खाया आपने कभी? आप बताओ। हाँ, मुझसे बहुत छोटे हो। हाँ जी, चने खाए हैं? चने कुछ मतलब ब्लैक चने एज अ वो सब्जी के तौर पे खा लिए या कब से खा रहे हो? अभी थोड़ा कॉन्शियस हो गए हो, हाँ अभी है कॉन्शियस ना? तो अदरवाइज बर्गर अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, चिप्स अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पिज्जा 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 तो आई डाई फॉर इट। रात को सोते कितने बजे हो? 11 बार खाते हो उस वक्त भी? वो चल रहा है उसी टाइम आती है क्रेविंग्स, है ना? उसी टाइम आती है क्रेविंग्स। पूरा दिन डाइट करके ना, जब यू सिट ऑन योर बेड, यू बिंज वॉच समथिंग, सारा ऐसे लगता है कि सब कुछ आज ही खा लो और अभी खा लो और अभी कल सुबह नहीं होगी, तो ये माइंडसेट बन चुका है। फिर वो खाने के बाद क्या करते हो? उठ के कहीं जाते हो या बस नींद आ जाती है ऐसे कर? बस वो डब्बा फेंकने के लिए जाती है। हाँ, तो आपका आंसर आपने खुद दे दिया। आप देखो क्या तो कर रहे हो। किसने मतलब उसके बाद ब्रश भी करते हैं मैम? हाँ, मतलब ब्रश करते हो। अब आपको पता है कि उसके कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए खाने के बाद? मैं अभी चिप्स खा रही हूँ और अभी मुझे नींद आ रही है, फटाफट से वॉशरूम में गई तो ब्रश कर लिया, या आप वेट करते हो? नहीं मैंने खाया, हम्म उसको फेंका एंड देन ब्रश करने गई। देखो देखो, खुद डैमेज कर लिया ना। खा रहे हो, मुंह में एंजाइम्स बन रहे हैं, एनेमल वीक हो गया, एसिड प्रोड्यूस तो होता ही है ना कुछ भी आप खा रहे हो, और इमीडिएटली आपने ब्रश कर लिया, वो एसिड बना हुआ था, तो आपकी इनेमल लेयर को डैमेज होगा ना। 15 मिनट तो वेट करोगे ना ब्रश करने के लिए, बट वो वेट होती नहीं है, नहीं क्योंकि हमारी तो ईटिंग 12 बजे हो रही है ना, पहले की तरह 7 बजे नहीं हो रही। 7 बजे खाया होता तो शायद हम 10 बजे ब्रश करते बेड पे जाने के लिए। ऊपर से सॉफ्ट डाइट खा रहे हो, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, रात को सलाइवा नहीं बन रहा, और ब्रश कितने लोग करते हैं रात और ये जो नंबर्स हैं, अगर को? इसमें मैं एज फैक्टर की बात करूँ तो ये कोई एज 40 या 50 या 60 वाले नहीं है। जो ये 1 बिलियन में जो इंक्रीज़ हुआ है ना, सो इट इज़ सेड दैट कि वो 12 साल के बच्चे से लेके एंड टिल जेन ज़ीज़ और हम मिलेनियल्स भी लगा लें तो 30, 34, 35 तक की एज वाले ही हैं जिनके अंदर ये ओरल डिसीज़ बढ़ा है। तो आई थिंक द इश्यू मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया कि चलिए ये एक इश्यू है, नाइट में खाना बिल्कुल मैम। एंड स्टिकी फूड यू टॉक्ड आप अबाउट। देखो ना, हमारी प्रैक्टिस में 80 साल के जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, 70% के तो टीथ होते हैं, टीथ होते हैं। आप सोचो, आप 80 की उम्र में आपके टीथ होंगे, और जो 25 साल के बच्चे आ रहे हैं उनके दोनों निकले हुए हैं। हाँ, आपने अभी किसी बच्चे का इम्प्लांट किया, आपने मेंशन किया वो नहीं, बच्चों में तो रिकमेंडेड नहीं होता इम्प्लांट। एक नाल आपने रूट कैनाल तो बहुत कॉमन हो गया है, 2 साल के बच्चे में, 3 साल के बच्चे में, 4 साल के बच्चे में। वो तो बात देखो ना कि ये सब कुछ चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो रहा है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स आप कितने बजे सो रहे हो और कब उठ रहे हो। आई थिंक दोपहर में उठते होंगे बच्चे 12-1 बजे, जिनको ऑफिस नहीं। मतलब अगर मैं जेनज़ीज़ की बात करूँ तो वो तो ये टाइमिंग्स है। हम जब मिलेनियल्स हैं, वो थोड़ा फिर भी थोड़े सर्टेन टाइम पे उठ जाते हैं, थोड़ा जनरल टाइम पे 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। बिल्कुल आई थिंक 9 भी लेट है ना? नहीं, अब ये तो अपना खुद का
वो है कि क्या लेट है। अब मैं आपको कहूँगी कि आप मेरी तरह 5 बजे उठ जाओगे? नहीं उठोगे। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ ऐसे, मैं जिम जाती हूँ 5:30, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑल्दो अभी फ़र्क नहीं दिख रहा। और मैंने एक आपकी बड़ी जब मेरी टीम सारे हम आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स एंड आपके सोशल मीडिया या आपके गूगल या आपके क्लिनिक को सर्च भी कर रहे थे आपके वेबसाइट वगैरह पे, तो वहाँ पर आप एक फ़नी रील मैंने रूट कनाल की देखी थी जिसमें आप बच्चे को बहुत पीछे-पीछे भाग रहे हो और वो कहाँ आपके क्लिनिक के बीच में जाके छुप रहा है एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? कि छोटे-छोटे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, भाग रहे हो। मैंने काफ़ी फ़नी रील्स देखी हैं बच्चों के साथ आपकी। बच्चों को मैनेज करना थोड़ा टैक्टफुल तो होता है, कई बार आपको बहुत वक़्त भी लगता है, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव योर ओन मेथड्स एंड पेरेंट्स अभी भी दे आर नॉट ओके कि बच्चों का रूट ना चलो ये तो निकल ही जाएँगे, क्या करना है? सो व्हाट मतलब हाउ डू यू टीच देम एंड हाउ डू यू ट्रेन देम, एजुकेट देम कि रूट कनाल बच्चों में भी क्यों हो रहे हैं? वैसे रीज़न क्या है इस चीज़ का? मैम वही है, एक तो डाइट फैक्टर ही है और बहुत छोटे बच्चों में तो बड़े सारे फैक्टर हैं, बॉटल फीड है, अब बच्चा रात को पेरेंट्स का भी थोड़ा आजकल वर्किंग ज़्यादा हो गई है, ईज़ी फ़ील करने के लिए वो भी बच्चों को कि रो रहा है चलो यार बॉटल मुँह में डाल दो, थोड़ा बड़ा है तो फ़ोन पकड़ा दो। हुँ। ईज़ी वेज़ है ना बच्चे को चुप कराने का, तो वो लॉन्ग रन में आइज़ को हार्म कर रहे हैं, डेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, मेंटल लेवल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं नंबर्स बच्चों के, बदल रहे हैं। क्योंकि कन्वर्सेशन कम है ना, कन्वर्सेशन जहाँ कम होगा तो अपने आप ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी ना। सो ये ट्रिगर करता है डेंटल हेल्थ को भी। बिल्कुल मैम, बच्चों अगर में वो मान लो पूरी रात बॉटल बच्चे के 2 घंटे पड़ी हुई है, माउथ में आपका जो है मिल्क पूल हो गया है, हुँ। कैविटीज़ करेगा। अब वो ठीक कहते हैं कि दूध के दाँत गिर जाएँगे अप टू सर्टेन लिमिट, बट हर दाँत के गिरने की एक एज होती है ना, उस एज से पहले अगर हम उसको निकाल देते हैं या खराब हो जाता है तो बच्चा खाना कैसे खाएगा? बचाना तो पड़ेगा ना फिर, दैट्स व्हाई रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो मैम हम पहले पढ़ते थे हमारे बुक्स में भी लिखा है कि जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो मैंने भी डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में वो उसमें डिप्लोमा किया है, तो उसमें भी हमने काफ़ी पढ़ा है कि ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए। सो ये कौन से लेवल्स होने चाहिए और क्या टाइमिंग्स होने चाहिए ब्रशिंग? एक तो मैम नाइट में तो मस्ट है देखो, क्योंकि अगर आप अपनी डेंटल हेल्थ के लिए ब्रश कर रहे हो तो रात में करोगे। ये रात को सलाइवा थोड़ा कम हो जाता है, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो कैविटीज़ जो बनती हैं वो उससे बनती है। तो नाइट में तो मस्ट है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि अ, ब्रेकफ़ास्ट के बाद करो ब्रश, जो रिकमेंडेड है आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट, बट क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, भाग रहे हैं, काम के लिए भाग रहे हैं, तो कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो माई एडवाइस इज़ कि आप एक बार तो सुबह उठ के फ्रेशनेस के लिए करते ही हो, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। आपको माउथ में स्टिकी और खाना भी नहीं खाया जाता। ठीक है, यू डू योर ब्रशिंग वन्स यू गेट अप। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट के बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एट लीस्ट यू कैन डू वन थिंग कि ब्रेकफ़ास्ट के 15 मिनट बाद या आधा घंटा बाद इफ यू आर एट होम और इन द ऑफिस डू ए प्रॉपर ओरल रिंस, हुँ। कि आप अच्छे से वाटर? वाटर से कर लो अच्छे से। एट लीस्ट दैट विल हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हुँ। करेक्ट। माय रिकमेंडेशन इज़ दिस। अभी 16 ईयर ओल्ड की बच्ची शी डाइड बिकॉज़ ऑफ हार्ट अटैक इन गुड़गाँव। इट्स अ न्यूज़ अभी 1 महीने पहले न्यूज़ आई है ये। मैम देखो ऐसा है, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, डाइट डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, देन योर लाइफ़स्टाइल, देन ये जो जिमिंग का और ये सब हर चीज़ एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद जिम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मीन्स जिम आप डू यू सपोर्ट जिम? ऑब्वियसली आई हैड बीन अ जिम लवर थ्रू आउट माय लाइफ, बट ये नहीं कि 2-2 मर घंटे मिट जाओ। मर मिट जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक तो बोला, ये भी मर मिट इश्यूज़ है जाओ। मैम, बहुत बिल्कुल केसेस ये भी इश्यूज़ आए हैं। हैं कि अच्छे-अच्छे डाइट लेने वाले लोग भी कोलैप्स कर गए डाइट जिम के क्या अंदर ही। डाइट क्या? प्रोटीन्स, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, प्रोटीन शेक्स, हुँ। हमने तो नहीं सुने थे कभी। आपको लगता है कि मेरी हेल्थ कहीं से खराब है? नहीं। Though I am facing some issues, that's age related issues, but otherwise we'll lead a very You're happy and you're healthy a life. reversal kind of age, हाँ? Your age is coming back. So thank you, but वो देखने से लगता है। लोग कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। हुँ। अभी डेंटिस्ट पहले आपको बिलीव नहीं करोगे कि मतलब डेंटल issues has lot to do with your heart health. Have you ever heard about it?
No. कि जो आपके दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, they can travel through your blood vessels and get lodged in the heart attack. Through a Then- mouth. Exactly. So dental health is very important. मैंने जो बहुत लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, इवन पुरानी रिसर्चेज में भी बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मेन कॉज जो आपके हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। आपके ओरल बैक्टीरिया हार्ट में जाके लॉज हो सकते हैं। पहले हम देखते थे डेंटल क्लिनिक्स, जैसे हम पास आउट कर रहे हैं कहीं भी, कहीं से जा रहे हैं, तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते थे। नाई की कुर्सी होती थी वहाँ I- पर। एक मैंने रील देखी हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम पे कि जैसे वो आई वॉन्ट से हाँ हाँ obviously, आई वॉन्ट से द कंट्री नेम, हाँ। बट वहाँ एक्चुअल में वो ब्रश ऐसे फाइल कर रहे हैं दांतों को हाथ में या फिर चिपका रहे हैं। तो पहले ये होता था, बट अभी भी अगर मैं बात करूँ, इट्स एरा 2025 26 चल रहा है आपका। एंड पहले डेंटल क्लिनिक्स बहुत कम होते थे। अगर मैं 10-12 साल 15 साल के पहले की बात करूँ, एंड ओवर द डेकेड हर 2 साल बाद 65,000 क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं। हम इंडिया की अगर बात करें तो रिसोर्सेज कहता है। सो पीपल आर अवेयरिंग देमसेल्व्स फॉर दिस, एंड अगर डिमांड है तभी तो क्लिनिक होता है। Obviously, बिल्कुल। सो पहले कम थी, पहले पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है ना। तो पॉपुलेशन की बच्चे भी तो उतने ही पैदा हो रहे हैं ना। करें, अब ये भी तो देख पॉपुलेशन भी एक है रीजन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। बिल So, ma'am, before wrapping up the conversation and this podcast, what do you want to say? What message do you want to give to your audience? I would again say this is especially for the younger generation. Be careful about your mental health, and then obviously dental health. Dental health means what you eat. What you eat shows through your body. So you should be careful, be mindful about eating. Do brushing as I advised, and don't do binge eating. Yeah. Go to That, sleep. that was totally for me. Yeah. So you are young now. So, ma'am, I have a request. I just want to cater those parents जो अभी जिनके बच्चे 2-2.5 साल 3 साल 4 साल के हैं, कि उनको अगर कुछ हम मैसेज देना चाहें कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर वो बिजी हैं आजकल, तो उनके बच्चों को जैसे अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो कुछ भी दे रहे हैं खाने के लिए, चाहे वो चिप्स हैं, once in a while is okay. So what message do you want to give them कि to take care of their eating habits? बिकॉज आजकल मैंने देखा है कि बहुत बच्चे अब विजिट करने लग गए हैं। मैम बच्चों को बेसिकली आपको वर्बली नहीं सिखाना होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर मैं चिप्स खा रही हूँ और बच्चे को बोलूँ कि बेटे मत खा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, दैट इज नॉट डन। सो यू फॉलो गुड हैबिट्स, योर किड्स विल फॉलो whatever they do, what they see. बिकॉज दे आर द If I am using foul language at my place, how can I expect कि मेरा बच्चा गाली नहीं देगा? So the same is with your habits. What I am eating is my kid will eat. So I need to follow the healthy habits. बिकॉज If I am using my mobile throughout the day, how can I stop my kid to not to use the mobile? बिकॉज दिस The जनरेशन message should be straight and to yeah. बिकॉज ये जो जनरेशन है अभी, जो मैं अगर जिनकी बात करी, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड यही आगे आएंगे। अच्छा होना चाहिए कंट्री का। होना चाहिए। और आई थिंक अगर मैं जेंसिस की बात करूँ, जेंसिस ज़्यादा एक्टिव हो गए, या मोर प्रोडक्टिव देन मिलेनियल्स एंड बेबी बूमर्स, या उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिवनेस भी देखें तो वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं जेंसिस। Again, there is a limit to everything. Excess of everything is bad. काम करो बट एक लिमिट तक अपना भी ख्याल रखो। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, डेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, मेंटल हेल्थ का, हार्ट हेल्थ का ख्याल रखो। एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स, नॉट द मनी की तुमने कितना इकट्ठा कर लिया। Correct. Thank you so much for your lovely views and what experience you carry throughout your life, and maybe this helps to our audience, and जो message आप convey करना चाहते थे, maybe it would have reached through our podcast. So thank you so much. Thank you for calling me. Thank you. Welcome. Yeah.